Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that last time we were discussing about elastic collision, where we discuss it, what is collision, what are its types, and discuss two types of collisions. One is elastic collision and second one is inelastic collision. In elastic collision, we have discussed that the kinetic energy, momentum, and then force exist in nature. They all are conservative nature. They are all of conservative nature. And momentum remains conserved. Kinetic energy remains conserved. And where in inelastic collision, these things were not conserved. Kinetic energy doesn't conserve, but momentum and the other momentum remains conserved out there in inelastic collision. So now, if we have today we are discussing about the elastic collision in one dimension. That was a simpler topic. Now we will put that topic forward and we will discuss the topic today, that is elastic collision in one dimension. Here I have considered two bodies A having mass m1 and body B having mass m2. Both are having, one is having velocity u1 and second one is having velocity u2. This is u2. This is u2. This is before collision. When we know that these bodies didn't actually collide each other. As you know that the collision may be there may be physical contacts or there may not be a physical contact. As I have given earlier example that in Rutherford's experiment, that there is an actually electrostatic repulsion between the alpha particle and the positively charged nucleus. Now here I am considering that these bodies initially before collision are initially moving along a straight line, along a same straight line. जिस लाइन पे बॉडी ए चल रही है हैविंग मास m1 u एंड वेलोसिटी u1, उसी लाइन पे ये बॉडी भी चल रही है विद मास m2 एंड u2. नाउ this is the picture of the during the collision. Now after the collision we can see that as there is no loss of kinetic energy between the body during the collision, so that we can say that these bodies are occupying the same path, same straight line as they were moving before the collision. So that after the collision, the mass of the body m1, the body A is moving with a velocity v1 and having mass m1, same mass, and body B is having mass m2 and velocity v2 after the collision, so that there is no loss of kinetic energy and momentum. This simple सी बात है. Bodies दो ली मैंने, before collision मैंने उनका mass m1 रखा and u1, m2 and u2. After the collision, because there is no loss of kinetic energy and momentum, so that their mass, what I can say, वहाँ पर जो उनका मास है m1 और velocity v1 है और इस बॉडी का m2 है, और so that they have not lost any form of any kinetic energy. No, there is no loss of kinetic energy. Now we know that हमारे पास पता है कि the linear momentum remains conserved here. जो linear momentum है that remains conserved here. As we know that the linear momentum is conserved. तो फिर I can write it as, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जब linear momentum conserve है, so that I can write it as that is momentum of body first, that is mass times velocity. mass है m1, velocity है u1, प्लस मैं लिख सकता हूँ बॉडी B का m1 u2, m2 u2, m1 u2, m2 u2. ये है मोमेंटम ऑफ द बॉडी सेकंड. मास है m1 एंड m2. तो फिर ये आ गया मोमेंटम ऑफ बॉडी A, मोमेंटम ऑफ बॉडी A before collision, and this is momentum of B
momentum of the body B before collision. तो फिर after the collision, as the linear momentum is conserved, I can write it as m1 v1 plus m2 v2. इस इक्वेशन को नाम दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट. ये है सिंपली मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन. इसी तरह से ये है मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आफ्टर द कोलिजन. तो सर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं कि सम ऑफ द मोमेंटम्स बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम लीनियर मोमेंटम्स आफ्टर द कोलिजन. इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अब इवॉल्वेट करना चाहूंगा. मैं लिखूंगा, हम लिख सकते हैं m1 u1, इसको मैं इस साइड में लाऊंगा. मैं लिख सकता हूं माइनस साइन m1 v1. अब यहां पर रह गया m2 v2, ये रखा है m2 v2. तो फिर यहां से मैंने ये लाया तो फिर ये बन गया m2 u2. यहां से m1 मैंने बाहर निकाला तो अंदर रह गया u1 माइनस v1, और यहां से मैंने m2 बाहर निकाला तो अंदर रह गया v2 माइनस u2. ये आ गई इक्वेशन सेकंड हमारे पास. सिंपल सी बात है. क्या किया मैंने, थोड़ा सा एलाबोरेट किया इस इक्वेशन को. नाउ वी नो दैट kinetic energy is also kinetic energy is conserved. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर. ये बराबर आएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1, दूसरा क्या आएगा v2 स्क्वायर. इसको भी थोड़ा सा अगर हम एलाबोरेट करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा, हमारे पास आएगा ये 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यही पर आएगा. इसको मैं यहाँ लाता हूँ माइनस ये आएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर. यहाँ से क्या रह गया ये वाला, तो फिर ये रह गया 1/2 m1 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 ये वाला. जब मैंने यहाँ लाया तो यहाँ पर क्या रह गया m1, तो यहाँ से भी m1, ये हो गया, ये है ना m2 v2 स्क्वायर. तो फिर ये यहाँ पर रह गया 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 स्क्वायर. ये m2 था यहाँ पर है. तो फिर यहाँ से 1/2 m1 बाहर निकालो, अंदर रह गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. यहाँ पर भी 1/2 m2 बाहर निकालो, यहाँ पर रह गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. और 1/2 चला जाएगा तो फिर यहाँ पर रह गया m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. यहाँ पर रह गया m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड. ये आ गई ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, और ये आ गई इक्वेशन थर्ड. अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, जो इक्वेशन फर्स्ट भी है, इक्वेशन सेकंड भी है, और इक्वेशन थर्ड भी है. हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड है वो है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर.
अब देखो इन इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 28, डिवाइडिंग इक्वेशन, सॉरी 28 नहीं है, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, नहीं, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। तो फिर क्या आएगा हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सिंपली आ गया यहाँ पर m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 माइनस v1। यहाँ पर आ गया m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया m2, क्या आ गया दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा v2 माइनस u2। तो फिर ये और ये कैंसल और इसमें एक एक जाएगा, तो फिर यहाँ पर रह गया हमारे पास u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2। ये आ गई हमारे पास लास्ट इक्वेशन। तो फिर ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फर्स्ट बिफोर कोलिजन माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फर्स्ट आफ्टर द कोलिजन। तो फिर इसको हम सिंपली कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी आ गई भी कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी आफ्टर द कोलिजन एंड दिस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए बिफोर द कोलिजन। तो फिर ये भी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी, डिफरेंस इन द वेलोसिटीज। तो फिर यहाँ पर कह सकते हैं हम इसको डिफाइन कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन वन डायमेंशनल मोशन, हम कह सकते हैं इन वन डायमेंशनल मोशन, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो हो गई ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, after the collision is equal to relative velocity of approach before the collision। तो इस इक्वेशन का यही मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन वो किसके बराबर है, जिसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जिसे कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फिर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी एलाबोरेट कर सकते हैं हम फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या कौन सी आएगी, फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी कैन राइट इट एज u1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या v2 जो हमारे पास है ये v2 वो आएगा बराबर u1 माइनस u2, v2 निकालना है हमारे पास। तो फिर u1 माइनस u2 प्लस v1 ये आएगी हमारे पास इक्वेशन। ये इक्वेशन आएगी यहाँ से, ये भी हम एलाबोरेट करेंगे कैसे हमने किया। तो फिर अब इस इक्वेशन को हम, ये जो है ना ये इक्वेशन, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल के देखेंगे, तो फिर वहां से हमें क्या मिलता है। तो फिर अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, अभी हम आगे जाएंगे, ये इक्वेशन लेके हम आगे जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे आगे तो हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट आते हैं। फिलहाल आया हमारे पास रिजल्ट आया यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फिर हम आगे जाके हम इसमें स्पेशल केस भी देखेंगे कि व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस, या व्हेन द बॉडी बी इज एट रेस्ट, एक बॉडी को हम रेस्ट पे कहेंगे, तो व्हेन द बॉडी ए एंड बी हैव द सेम मासेस, तो फिर
उस वक्त देखेंगे हम ये जो सारे स्पेशल केस हैं वो फिर इंशाल्लाह उसी वीडियो में हम देखेंगे। इस वक्त के लिए अस्सलाम वालेकुम।